A very warm welcome to all of you in a very new program of Shraddha Channel, Astrology, a myth or a science. जी हाँ, मैं आपको बता दूं एक ऐसा कार्यक्रम जिससे आप जान पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपकी मदद करता है इन योर लाइफ स्पैन। देखिए, आपको यहाँ पर आज मैं मिलवाना चाहूँगी उस पर्सनालिटी से, उस शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर के राजन। चलिए, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू वेलकम हिम। सर, वेलकम टू द शो, वेरी वेरी वार्म वेलकम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। या जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, कृष्ण जन्माष्टमी इज वेरी नियर, कमिंग अहेड। सर के विषय में क्या कहूँ, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 1993 में बिल क्लिंटन के लिए प्रेडिक्शन की थी कि ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन द कमिंग इलेक्शन, एंड वो 30% के मार्जिन से विन कर गया था इलेक्शंस की जब, और वो लेटर उस असेंबली में, उन्हीं की असेंबली में खोला गया था वो लेटर। मैं जानना चाहूंगी राजन साहब आप ही से कि उसके बारे में आप जरूर यहाँ पर दर्शकों को बताएं ताकि वो जान पाए कि किस तरह से आपके प्रेडिक्शन ने पूरी यूएस में, अमेरिकन पीपल जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग समझते हैं कि दे डू नॉट बिलीव यूजुअली, बट दे बिलीव, दे डू ऑल द उपायास, दे यूज टू कम टू योरसेल्फ, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों से जो है राहत पाई है। तो सबसे पहले बिल क्लिंटन के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं। 24th July in 1992, I pushed a letter to Mr. Clinton, who was fighting an election with Bush Senior. Okay. And I wrote in that letter, I mentioned that he'll win with a minimum margin of 30% over his nearest opponent. Right. And that happened. Elections happened on 4th of November, and probably 8th of January 93, he took charge of the office. And the second week of January, I was called by one of the channels, and I was interviewed. It was telecast live all over America, and then I was interviewed, and she did some astrological work on the camera in their studio also. So that's how it is. And most of the time I am traveling abroad. See, in 2000 I made a world tour on behest of a billionaire whom I met in 1990 in London. Right. And at that time I predicted for him that he'll have a big fortune and he'll open the offices all over the world, and I was sponsored by him to go around the world with him for about 2 months, and I interviewed about 1,300 people astrologically to place them at appropriate place in the company, in the various offices in the world. So that's how it is. Astrology in professional life, astrology in your commercial life, astrology in your personal life is very important, and those who believe it, they really and truly benefit from it. I just want to know about you and that how you come in this profession. Usually people think that the person who gets the knowledge, education, they used to go to either to become a doctor or a professor or a lawyer or an engineer. They do not want to become an astrologer. How this idea came to your mind, or it's a sudden thing or an accident or that's a wonderful question. Pre-planned things? Listen, anything can be accident except astrology because it is directly bestowed by Almighty the Great. Certainly. Everybody, you have a certain set of books, certain set of literature, certain set of scientific consultancy. Mathematics and calculations. But in astrology, there is no parameter. It is a direct blessing of Almighty the Great. I'll tell you, you may call it an accident, or anybody listens to me may call it an accident. Ever since I was growing to the age of 15 or 16, I started washing my hands. And I have got the most complicated hand. I am seeing your skin is quite complicated. Yeah, and I found there is some mystery written in the lines. Then I started seeing other people's hands. Okay. Then one fine evening, out of my pocket allowance, I buy a book in Connaught Place on the street, Kiro. Oh. I started reading Kiro. Now you will be surprised. People say astrology is only believed in India. I see at the time I was in America, I learned over 50 million people believed in America, leave aside China, then Singapore, Hong Kong, Malaysia and India. Yeah. See, I think 2/3 population of the world believes in astrology. It's a very big $1 billion industry. And you see, I'm very pleased to see on the TV nowadays, very many people are coming
on astrology they are speaking. It has become a system with the people. Yeah. But I shall suggest all those people, if they are blessed with astrology, they must do it. If they are not, they shouldn't do it. Because there is a special combination. It should not be a profession. It should be more an astrology and blessing than a profession. Or you can say it's a celestial light that is being given cosmic light that is being given by the God. Yeah. That is another issue, but I just want to tell you I was by profession with insurance company, 25 years as a class 1 officer, and 96 I resigned. Then I was totally into astrology, and then see onward I didn't look back. Wow, and wonderful. I wanted to converse with the people at large in India also. तो उसलिए मैं आप सब लोगों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ मैं जो भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ जो ब्लेसिंग है उसको मैं शेयर करूँ और आप लोगों के साथ मिलूँ irrespective of what I take from you. That is a different thing. That is wonderful, but I just want to tell you people, मैं आप लोगों को बता दूँ कि you can call us on 423-66667 and you can talk to directly Mr. K.K. Rajan in a show Astrology, a Myth or a Science. Here, Mr. Rajan, I just want to confirm about one thing. In an education system of India, I don't want to discuss about the education system of India, but I just want to confirm it about that education is more important. A child's education is more important, or his destiny is more important for his education or her education. आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से पूछा है. Thank you very much for the compliment. But that is the true situation in India. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मदर्स के लिए. वो हमारे पास जब पूछने आती हैं यही पूछती हैं मेरा बच्चा क्या बनेगा. बिल्कुल, हम उसको कौन सा करियर चूज करवाएं. हम उसको कहते हैं आप बच्चे की किस्मत अच्छी देखिए, आप एजुकेशन पे मत जाइए. अभी आपने पीछे तारे ज़मीं पे देखी होगी, बहुत अच्छी पिक्चर थी. उसमें अब हमें पता नहीं होता बच्चे ने कितनी कैपेसिटी है. वी थर्स्ट आवरसेल्फ ऑन हिम. वी वांट टू सी व्हाट वी कुड अकम्प्लिश. वी शुड टेक फ्रॉम दैट चाइल्ड. But we impose the things on that child. We thirst ourselves. We thirst our system on him. Irrespective of knowing that उसके 5th house में वो planet है कि नहीं, उसके 2nd house में वो चीज़ है कि नहीं, जो उसका 10th house वहाँ पे strong है कि नहीं. सबसे पहले तो आप जो basic thing है उसका लगन देखो. अब लगन में नीच का planet बैठा है, 5th lord 8th में बैठ गया, तो कुछ नहीं कर पाए. जितना मर्जी आप उस बच्चे पर टफर होगा वो. उसको कर क्या लोगे आप एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करके उसको दिखाइए, फिर अपना एम्बिशन देखिए. अब अकबर का कहाँ माँ थी, बाप उसका मर गया था 9 साल में, 13 साल में, बगैर पढ़े लिखे. गद्दी किस्मत है, गद्दी पे बैठ गया और ही वाज द बिगेस्ट मुगल emperor of his time, the biggest मुगल. Certainly. And then वो दीन इलाही चला रहा है, नवरत्न रख रहा है, सब कुछ है. तो एजुकेशन का तो अब मुझे बताइए अम्बानीज का क्या एजुकेशन है. बिल गेट्स को सब जानते हैं. बिल्कुल. ही इज ए कॉलेज ड्रॉप आउट. अब जिसको मैं द बिलियनर आई मेट इन लंदन, ही नेवर वेंट टू कॉलेज. आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 90. आई टोल्ड हिम लिसन, द हाउस कंटेन्स ह्यूज बिल्डिंग, swimming pool, sauna, jacuzzi, all luxury, and the gate is opened by an electronic mechanism, remoter. At that time in 90. It was not heard of anywhere in India. In 2000, I told him, your destiny started in 84 and you were a chore, you were a thief. And his wife retorted, he said, yes. In 8th standard when he was studying, he used to steal those cakes. He used to feel hungry from the shops. Give me that and I'll take this. He said, he's right. And that fellow become rich by accident. He goes to Italy in a fair, buys a popcorn blouse, and see, on, he becomes rich. That was all being done by his destiny. This is accident of destiny. Destiny wants to give you an opportunity, you become rich, it pushes you there. But you see, Mr. Rajan, sometimes destiny wants to give you, but we people can't understand that the opportunities are knocking your door, opportunities are for you. We can't recognize those opportunities in our life. We miss some opportunities. It comes at the proper time when you are destined to get it, not when you chase it. Fine. Opportunity never will come to you if you chase it. You see, you might have seen that sometimes you meet such a person at such a place which you didn't expect to meet him. Why? And then meeting onward, you get to know something that was important to happen in your life.
and the whole life career is changed. So these are accidents of nature. I usually tell people, have more faith in God, less in luck, more in pluck, then unluck becomes luck. Wow, wonderful. And one thing more, we should not be greedy. That's very true. Greed is incessant sickness. Seriously. Our position is एक बंदर की तरह है, हाँ. जिसने एक लोटे में चने देख लिए, वो चने उठाने लगा, हाथ फंस गया. हम उतने लालची हैं. अगर हमें लालच है, ambition is not bad. You should be desire is not bad. Not bad. But what Mahatma Buddha has told. Desire is not bad. You have to have desire. You cannot be Mahatma Buddha. You are a but human he has being. told us that the desires, your aspirations, your wishes are the cause for your all worries. We want that. If you are a human that being. That is why we are in a worried position right now these days. We are human beings. If we have no worry, we will die. A person who is not sad either is fool or a god. Right? We have to be sad. We have to achieve. We तो मर जाएंगे सब लोग. तभी हम खुशी का एहसास कर पाएंगे. सिंगापुर में सबसे ज़्यादा डेथ, सॉरी अपना आपके ये रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप जहाँ की गाड़ियाँ मशहूर हैं. फ्रांस. No. स्विट्जरलैंड में मैक्सिमम सुसाइड है क्योंकि लोग सेटिस्फाइड हैं. Why you should be satisfied? वहाँ तो पॉपुलेशन भी पूरी यूरोप की सबसे कम है. There should be something negative to make it positive. आपको फूल अच्छा लगता है गुलाब का, तो कांटा है ना चुभाने के लिए, दुख देने के लिए. तो दिन अच्छा लगता है, रात है ना, तो सब कुछ है. तो हमें महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते. एक रेयर कॉम्बिनेशन है. बुद्ध को ऊपर से एक मैसेंजर बना के भेजा था. आज के युग में लेकिन मिस्टर राजन, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी. लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग इच्छा रखते हैं. माँ बाप सबसे पहले बात करूंगी पेरेंट्स की. दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन कि जब वो उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे वो उनकी सेवा करेंगे. जब वो उनकी सेवा नहीं करते हैं उन्हें दुख होता है, वो रोते हैं. वही बच्चे जब उन्हें लात मार के घर से निकाल देते हैं तब दुख होता है, रोते हैं. वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं. तो वो डिजायर क्यों करें, वो एक्सपेक्टेशन क्यों करें? वो ये सोचें कि उन्होंने अपना बुढ़ापा खुद ही गुजारना है. आप क्या समझते हैं, ये तो इट इज़ फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल. जानवर नहीं बच्चे पैदा करते क्या? वो उनसे कुछ मांगते हैं. हम क्यों मांगते हैं? हाँ, तो वही हम बात क्यों है एक्सपेक्ट करते हैं? यहीं पर मैं आपसे पूछना हम अपने आप के अगेंस्ट करते हैं. वी शुड नॉट बी इमोशनल. हम अपना इंतजाम क्यों नहीं करके चलते? चिल्ड्रन आर फ्रॉम अस बट नॉट फॉर अस. मैं यूजुअली कहता हूं, आप क्यों सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके आपका फल है? वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है. पता नहीं वो क्या लेने आए पिछले कर्मों से आपके. सिवाय इंसान के और किसी की किस्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो नेचर है उसके लास्ट तो सेम है, परमानेंट है. ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर शिफ्टिंग, दे आर चेंजिंग. द सन हैज टू राइज इन द ईस्ट, इट विल राइज इन द ईस्ट. Yeah, we'll carry forward our discussion, but I just want to tell you people, बहुत सारे audience इस वक्त सोच रहे होंगे कि हमारे telephone calls, your telephone calls are welcomed. You can talk to Mr. K.K. Rajan और आप उनसे बात कर सकते हैं. Language barrier कोई नहीं है. आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है. Mr. Rajan knows lots many languages, तो आप किसी भी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं. Sanjay ji, first caller is with us from Delhi. Sanjay ji, welcome to the show. You can talk to Mr. K.K. Rajan. Yeah. राजी नमस्कार. नमस्कार जी. तो मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ. हाँ जी. सर उसका बर्थ है 10 अक्टूबर हाँ 2003. टाइम बोल दें. 12:69 दोपहर को दिल्ली. क्या पूछना चाह रहे हैं संजय जी? सर इसका फ्यूचर लाइफ कैसे रहेगी, वेल्थ कैसे रहेगी? आपने बिल क्लिंटन के बारे में इतना अच्छा प्रेडिक्शन किया था, तो इस बच्चे के बारे में बताइए. बच्चे की पत्रिका कैसी है और आपको कैसी मतलब दिख रही है? बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही संजय जी ने. क्या डेट लिखी है? फ्यूचर क्या रहेगी, वेल्थ कैसा रहेगा आने वाले, क्या स्कोप है? क्या डेट ऑफ बर्थ? 10th of October 2003. टाइम इज 12:29 PM दिल्ली. 2003. इतनी जल्दी आपको संजय जी क्या पड़ गई है? अभी बच्चे को पढ़ने दो. अभी तो 6-7 साल की है. क्यों ऐसा कर रहे हैं आप इतने कॉशियस मत होइए. आप कोशिश करिए. आप किसी ऐसे बंदे के बारे में पूछिए जो इस वक्त, बच्चों को आप स्ट्रेस मत लीजिए ना. बच्चे आप केयर करिए ना, अब नर्चर करिए बच्चे को. आप अच्छे पेरेंट हैं, मैं आपको मुबारक देता हूं, लेकिन अभी कुछ मत पूछिए. आपको साइकोलॉजिकल फर्क पड़ेगा. अभी आप टेंशन मत लीजिए बच्चे की.
नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोई बात नहीं, अभी चलने दीजिए। एंड आई एनकरेज यू टू बी गुड पेरेंट ऑनवर्ड आल्सो। बिल्कुल, उन्होंने इस प्रोग्राम में कॉल किया, अपने बेटे के लिए जानना चाहा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, चलिए हम ट्रैक से कहीं भटक गए हैं, लेकिन बात हम करना चाहिए थी एक और सब्जेक्ट बहुत आज प्रिवेल हो चुका है सोसाइटी में मिस्टर राजन की, डैमेज, इम्पैक्ट डैमेज, है ना। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन है, दोनों की कुंडलियां मैच करती हैं, दोनों के व्यूज मिलते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उनकी फैमिली में, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनकी ननद है, उनकी सास है, उनके ससुर है, उनकी जो है डिस्प्यूट का, उनके डाइवोर्स का बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। जो लड़की है वो ये कहती है कि मैं अपनी ससुर या सास की वजह से अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, या तो वो अलग हो जाए या मैं डिवोर्स दे दूंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पास तो बहुत रूटीन में आती होंगी, मुझे लगता है कि आप यूएस में रहे हैं इतने साल, वहां पर तो खैर न्यूक्लियर फैमिलीज का सिस्टम है। और सबसे पहले चलिए, जहां पर मैं इम्पैक्ट डैमेज की बात तो करूंगी, इससे पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। आपने यूएस में प्रैक्टिस की है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, यू वर देयर फॉर सो मेनी इयर्स। वहां पर लोग, जो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भ्रम है हिंदुस्तानियों में कि वहां पर उपाय वो कैसे करेंगे, चने की दाल लेकर, या वहां पर मंदिर है, चलता पानी है, या किस तरह से वो जाएंगे काला कपड़ा में। पहले तो हम बोल लें इम्पैक्ट डैमेज क्या है, उसके बाद इस पे आते हैं जी। सबसे ज्यादा दुनिया में केस हस्बैंड वाइफ के कोर्ट में है, नॉट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल स्टेइंग अराउंड देम। वही बात, माँ के ने बेटे की शादी की बड़ी खुशी से, माँ बाप ने शादी की, उसका सब कुछ किया। अब उस बेटे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, दे आर नॉट एबल टू सेक्रीफाइस माँ बाप। वो कहते हैं कि उसका 100%, उसने जो था उसका 50% उसने देना है उसको, नहीं देगा बेचारी घर छोड़ गई कहाँ जाएगी। धीरे 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 इंटरफियरेंस बढ़ जाता है, माँ का बढ़ता है, फिर वो बाप को बढ़ाएगी, फिर ननद का बढ़ेगा, फिर उसके देर का बढ़ेगा, वो बेचारी सैंडविच बन जाती है। एक नई लड़की को एटमॉस्फेयर में आने के लिए उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझाओ, थोड़े लिबरल हो। इन आवर सोसाइटी वुमेन इज नॉट ट्रीटेड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। एक बहू जो है, हम बेटी को तो बहुत अच्छा समझते हैं, बहू को बिल्कुल शी इज बिकम ए डोरमैट, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, एमडी है, डीएम है, बहुत अच्छी शादी, सिख फैमिली है, मे बी वो सुन भी रहे होंगे, अभी मैंने उनका केस सॉल्व किया है जी। तो फादर नहीं है, मदर मेरे पास आई लास्ट ईयर के बनी नहीं है जी, डाइवोर्स कराना है। ओहो। मैं क्या पत्री दिखाइए जी, देखी, मैंने कहा इनका तो डाइवोर्स बनता नहीं है। लड़की के स्पाउस हाउस जो है 7th हाउस शनि उच्च का है। वाओ, इतना बढ़िया शनि है उसका, आदमी पूरी दुनिया में मशहूर हो। तो मैंने कहा इसका डाइवोर्स किसने कहा, नहीं जी साड़ी बनती। मैं कहा तुम्हारी नहीं बनती है, इसकी नहीं बनती। बेटा अकेला आया था, लड़की को बम्बे भेज दिया था, बम्बे से थी। हमने कहा देखिए लड़के को काल सर्प दोष है, ये उसका पूजा, तो चलिए हाँ, उन्हें नहीं पूजा करेगा। ये जो प्रॉब्लम आई है, मुझे ये बताइए कि इस बच्चों को मैं वापस मिला दूं तो आप एक्सेप्ट करें? हाँ जी कर लूँगी। मैंने कहा इनको अलग करना पड़ेगा, कर दूंगी। अब सिंह साहब की थी कि मैं अपनी आप नहीं जाऊंगा। मैं कहा सिंह साहब आप पूजा करिए, आपको 23 मार्च को कॉल आएगी और 25 को आप जा रहे हैं। लो जी 22 को कॉल आई है, 24-25 को गए हैं। मैंने कहा जाके फ़ोन करना, प्यार से उसको ले आए, मुझे मिलने आए। नाउ शी इज़ 4th-5th मंथ प्रेग्नेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर लिविंग अलोन। पीछे 7-8 महीने वो इकट्ठे रहे, बड़ी क्लेश हुए, आई मीन सो मैनी अप्स एंड डाउन्स, बट दे आर डैम हैप्पी। परसों मिलने आए थे एंड दैट बॉय इज गोइंग टू अमेरिका फॉर स्पेशल स्टडी ऑन कार्डियोलॉजी एंड ही विल सेटल देयर। तो उसके वर्ल्ड रिनोन्ड होना था। बिल्कुल। तो अब उस इम्पैक्ट को क्या करेंगे आप? एक केस, हाँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ है मिस्टर राजन, तो ऐसे में किस तरह से तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं माँ बाप, तो उनको इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालें। इतनी आगे लगी हैं, हमारा समाज का सत्यानाश हो गया कि बहुएं जलाई गई, बहुओं को निकाला गया, आज भी हो रहा है, बहुओं को फेंका गया। नहीं, अब ये मैसेज बार बार भेजने चाहिए। हर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग समझे यार, नहीं करो ऐसा। कहाँ से बच्चे आएंगे, कहाँ से समाज बनेगा? इतना बढ़िया हमें संस्कार मिले हैं, इतना बढ़िया हमें लिटरेचर मिला है, मिथ्स मिले हैं। कहाँ स्वयंवर होते थे सीता के,
उस टाइम में तो बहुत छूट थी लड़कियों को, गंधर्व विवाह जो आज प्रेम विवाह का रूप धारण कर चुके हैं। तो कितनी देर बाद आप देखिए ना, हम ग्रो वो सोसाइटी ज्यादा एडवांस थी मिस्टर राजन, आज हम बहुत पीछे हो गए। हमारी कल्चर तो यूके में चली गई सारी। बिल्कुल। तो हम पर्दे पे आ गए, सती प्रथा पे आ गए, चाइल्ड क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्फ। आपका राइट क्या है बच्चे पे? आप क्या समझते हैं? अपने बच्चे को पैदा किया, कोई बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। जब भगवान ने आपको एक वो दिया है, एक नियामत दी है, उसको संभाल के रखिए, उसको पालिए पोसिए, एक समाज बनाइए, एक समाज को एक गिफ्ट दीजिए। कुछ कर, हर बंदे भगवान ने हर बंदे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया। शाह कहता है ना, वुमेन हैज कम ऑन टू द अर्थ टू फुलफिल बिहेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। वो एक क्रिएचर है, क्रिएटिविटी है उसमें, उसकी इज्जत करो आप। महात्मा बुद्ध को भेजा, आप प्रचार करिए। गुरु नानक जी को भेजा, आप मसीहा बन के लोगों को एनलाइटन करिए। गुरु गोविंद सिंह जी को भेजा, उसके बाद महात्मा ये बुद्ध आए, गांधी जी आए, उसके बाद गांधी जी आए। ये सारे इतना कुछ दे गए हैं, हमें और क्या चाहिए? हम सीखना ही नहीं चाहते कुछ। वेरी ट्रू मिस्टर राजन। और यहाँ पर मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू मीट मिस्टर राजन, यू हैव कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ, डिस्टर्बेंसेस, chaotic situation is around you, then do not get worried because Mr. Rajan is there and you can contact him, you can meet him. You just have to look at the scroll and just write down the telephone numbers, mobile numbers in your diary and just take an appointment and meet Mr. KK Rajan. Here, Mr. Rajan, we were discussing about dyslexia, Tare Zameen Par, that guy is having. Very similar situation is having our children, and a ratio, if you just want to count in India also, it's a major complicated situation in children of India. आप सारे बंदे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे बंदे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे बंदे करोड़पति बन जाएंगे। हर आदमी के जैसे कर्म है वैसे ही तो बनेगा। आप कितना कुछ लेके आए हैं वही तो देगा आपको। आपके हिसाब किताब में है कि आप क्यों किसी को देख के अपना माथा लाल करना चाहते हैं? नहीं करिए, दुखी मत होइए। मुझे आप क्या समझते हैं बहुत अमीर होके बहुत सुखी हो जाएंगे? नहीं होते, नेवर एवर। आप पूछ के देखिए। तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से बच्चे मिलने हैं। अब क्या हर एक को बेटा हो जाता है क्या? बेटा सब मांगने जाते हैं, ज्योतिषी के पास भी जाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवाएंगे, बेटा चाहिए। तो बेटी मांगने कौन जाता है? तो मिलती तो बेटी है ना, और बेटी के बगैर बेटा कहाँ से हो जाएगा आपका? बिल्कुल। तो इज्जत करिए। आप लक्ष्मी मांगते हैं, लक्ष्मी को दुत्कार देते हैं। जब भगवान लक्ष्मी देता है आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी इज ए फीमेल, घर की लक्ष्मी को। वो कहते हैं ना, स्त्रिया यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। अब जूते मारते हैं बेटी को, अपना इसको पत्नी को, उसके बाद कहाँ से आएगी पैसा? कहाँ से आएगा? तो शांति होएगी नहीं तो कहाँ से आएगा? मैंने इसका शेक्सपियर का एक कोटेशन बोलता हूँ, मैन इज बाय नेचर ए फूल, ही वॉन्ट्स इट हॉट व्हेन इट इज कूल, ही वॉन्ट्स इट कूल एंड व्हेन इट इज हॉट एंड पाइन्स फॉर व्हाट इज नॉट। वेरी ट्रू। तो उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बड़े आराम से जितना हमें प्रोवाइडेड है उसमें गुजारा कर लें। तो रॉबिन्सन क्रूसो बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर राजन, चलिए मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा दूं, आपने एक वर्ड यूज किया था, डिजायर्स आर नॉट बैड। डिजायर करनी बुरी नहीं है, इच्छा करनी बुरी नहीं है, इच्छाएं करनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, तभी हम उन सपनों को फुलफिल कर पाएंगे। उन लोगों के लिए जो सपने देखते हैं खुली आंखों से या बंद आंखों से, तो जो लोग सपने देखते हैं वो अपने सपनों को किस तरह पूरा करें, वो आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की मदद लेते हैं। देखिए, वो अपनी कुंडली का जब उसको पूरा उसका एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें से जो उनके नेगेटिव जो उनके ग्रह होते हैं या जो पॉजिटिव ग्रह होते हैं, चलिए सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, व्हाट आर दीज ग्रहस अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये एक सेलेस्टियल सिस्टम है, उसमें हमने जो हमें लिटरेचर ने दिया, हमारी स्क्रिप्चर्स ने दिया है 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्रास। अब उसमें दे आर सेटल्ड इनटू 12 हाउसेस। मैं अब लगन पे आ जाता हूँ। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन एक समझ लो आपका हेड है, बॉडी फॉलोज हेड। अगर लगन खराब है तो आप गए, फिनिश। लोग कहते हैं शनि खराब है, मैं कहता हूँ नहीं, कोई भी ग्रह लगन में बैठा हो, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऊंचा या नीचा, वो खराब है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिंदा एग्जांपल देता हूँ। बृहस्पति अगर नीच का लगन में बैठा हो, उससे बुरा आदमी कोई नहीं होगा।
अब मैं आपको एक कुंभ लगन के बृहस्पति की जन्मपत्री बताता हूँ, जो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, बहुत बढ़िया फैमिली है, बहुत शरीफ है। कुंभ में बृहस्पति है लगन में, मालिक हो गया सेकंड हाउस का, फाइनेंस का मालिक नीच का हो गया। इधर शनि के घर में 12th लॉर्ड, मकर राशि है 12th में। अब दोनों लग्नेश शनि 8वें बैठ गया, लग्नेश 8वें बैठ गया, बृहस्पति नीच का बैठा है। वो आदमी इतना बदतमीज है, गंदी लैंग्वेज है, हर किस्म का एडिक्शन है। ये लगन की बात है। अब यहां से आओ, 3 घर खराब हो गए, लगन खराब, 12th हाउस एक्सपेंस का, अब उसमें दुनिया भर के कर्जे हैं। सेकंड हाउस में जितना कमाया था सब लुटा दिया, उड़ा दिया एडिक्शन में। अब आ जाओ आप 3rd हाउस पे, मेष, वहां पे उसको नौकरी मिल गई क्योंकि दशम में उसका मंगल बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का। चौथे में आ जाओ चंद्रमा, अच्छा घर था, अच्छी माँ बाप थे, अच्छे फैमिली में जन्म हुआ। अब 4th लॉर्ड शुक्र नीच का हो गया 8वें, शनि के साथ बैठ गया। अब 5th लॉर्ड आपका बुध हो गया, वो 8th में बैठ गया। इस कुंडली में आपको क्या में, अब आप बहुत कुछ लेके चलते हो, अब 0 पे आ जाते हो। यहां पे डेप्थ इन एस्ट्रोलॉजी इज रिक्वायर्ड, उसको रोक सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का निजात है, प्रोवाइडेड यू बिलीव इट और यू वांट टू go through all the system. See, he tells you. See, I just want to confirm from you, Mr. Rajan. मैंने एक सवाल किया था कि अमेरिका में लोग किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सुलझाते थे। वहां पर मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 25-30 सालों का। जितना भार हम लोगों पे डालते हैं ना यहाँ पर तो लोग हर कदम कदम पर उपाय कर रहे हैं। महंगे उपाय नहीं चाहिए। बेचारों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो रत्न कहाँ से धारण कर लेंगे? 25,000 30,000 का पत्थर कहाँ से ले आएंगे खरीद के? कोई जरूरी नहीं है आप महंगे रत्न पहने। मैंने सब स्टोन पे आईएएस को आईएएस बनाया। सब स्टोन के ऊपर किसी को आईएएस बना दिया? हाँ, पन्ने की जगह ऑनेक्स बनाया है। कल उसने आईएफएस बना, मसूरी ट्रेनिंग ज्वाइन की है। वाओ। बच्चा वकील का बेटा है, वकालत उसने सीख ली, 85 बॉर्न है। ही इज द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इन द कंट्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 23 साल में। लास्ट ईयर मिला, हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस, यस। उसकी वो फादर के साथ वकालत की प्रैक्टिस करने 2-4 दिन गया, मिले, पत्री देखी, मैंने कहा भैया इसको तो बहुत बड़ा योग है। अरे अब मैं वो लगन की बात कर रहा हूँ, वो पहले लगन कहा है ना, हाँ। वही अब बृहस्पति का लगन है, धनु लगन है। अच्छा, हाँ, सेकंड हाउस में बृहस्पति नीच मंग रहा, योग कर रहा। उसके बाद तीसरे घर में चंद्रमा है जो ट्रैवल को देख रहा है। उसके बाद 11वें उच्च का शनि बैठा है, 9वें सिंह राशि का सूर्य बैठा है। मतलब सब अच्छे ग्रह। हाँ, सिर्फ 5th लॉर्ड बुध जिसकी मैं बात करूँ 8th में बैठा हुआ है, नीच के मंगल के साथ। हमने कहा भैया मंगलवार को सफेद चीज का प्रसाद चढ़ा दे, कुछ नहीं पहनना, और हनुमान चालीसा पढ़ दिया। अब इसमें क्या लगा उसका? 200-150 रुपए का स्टोन है, ऑनेक्स पहना दिया। मैंने कहा 5 साल काम करेगा। अब मैं 2.5-3 लाख का उसको पन्ना गया था ना, उसने आईएएस नहीं बनना था। आईएएस बना, पहले अटेम्प्ट में पास हुआ, 278 नंबर उसका रैंकिंग में, 750 बंदे। नागपुर ज्वाइन कर ले, उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मिली। मुझे कहता है अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं रीअपियर हूँ। रीअपियर कराया, फिर सारे प्रोसेस के थ्रू गया, 51 पोजीशन आई। कल मसूरी ज्वाइन की एंड ही इज इंडियन। उसका योग था, सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं, फ्री फॉरेन ट्रैवल उसने करना है सारी बार। वंडरफुल। नाउ वी कैन से दैट कि बहुत जो उपायास हैं सस्ते भी जो हैं काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, यहाँ पर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई नीड टू से, एंड इट्स अ लॉन्ग ब्रेक बिकॉज द टाइम इज ओवर. And Mr. Rajan, it's a wonderful conversation along with you. Yeah, it's over. Thank you very much for coming here. It's my pleasure to talk to you. And जय श्री कृष्णा। मैं आता रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, और उर्वशी जी मेरे से कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगी जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मत सोचिए मैं आपकी कॉल ले रहा हूँ कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे अच्छा है कि आप
फेस टू फेस अपने ज्योतिषी के पास जाइए, बात करिए। ये एक मिमिक्री हो जाती है, नहीं 1 मिनट में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मत पूछिए ये सारी बातें। तो चलिए, ये मिस्टर राजन का ख्याल है कि वो 1 मिनट में आपके विषय हम में क्या लेंगे, बताएंगे। कॉल भी लेंगे, कॉल्स भी लेंगे, लेकिन अगले संडे को आपको बिल्कुल इसी दिन इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी चैनल पर मिस्टर के राजन के साथ एस्ट्रोलॉजी अब मिथ और साइंस में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Mr. K.K. Rajan, Astro Analyst. Phone numbers 8826 460 233, 8826 460 234, 8826 460 235, 98 11500 556. Email ID kkrajanlive@yahoo.com and kkrajanlive@gmail.com. Very good afternoon to all of you, and me myself Urvashi Jain welcomes you all in our very new program Astrology, a Myth or a Science. Right friends, because I want to inform you that with this program I just want to introduce Mr. K.K. Rajan, who has worked in America, who has practiced in America the astrology for the last 25 to 30 years, and who predicted for the President of America, Mr. Bill Clinton, and his prediction gave him a big, I must say that huge popularity among the masses of America. I just welcome to Mr. K.K. Rajan. Welcome to the show, sir. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you very much. Yeah. People here wants to know about many things, but today I want to discuss along with you about the Kal Sarp. Yeah. Here in India, people are facing lots many problems regarding Kal Sarp. Lots many astrologer told them that in your kundali there is a dosh, there is a nag